Okay, so I was talking about that in circuit theory. Circuit size is very, very small as compared to wavelength. So as a simple example, if you have a circuit like this, resistor, some inductor, and let's say some capacitor, and then it is energized with some source. So in order to do the analysis of this circuit, what you will do, you apply KCL and KVL. And what you do, you assumed how you represent the circuit. You assume that this voltage source will produce a current, and that current will pass through it. And you assumed that this current I, why you are showing your current like this? Because you think that whatever current is there, the same current is there, and the same current is there. Now you are using this because you are applying this important concept that because this particular source, its frequency is small. So what was the relationship? That if frequency is small, wavelength is very large. Wavelength is very large. So what is the circuit size? Your circuit size, as an example, maybe the wavelength is in kilometers. When you calculate the wavelength, that wavelength is in terms of kilometers. But your circuit size is in terms of centimeters. So your circuit size is in terms of centimeters, and this wavelength is in terms of kilometers. So that is why I'm saying circuit size is very, very small as compared to wavelength. When you have a situation like this, you can apply circuit theory, and in circuit theory, you can apply KVL. But what will happen? What will happen to this circuit theory if you increase the frequency? So it's obvious that as you start increasing the frequency, wavelength starts decreasing. So if you increase your frequency to such a high value that now wavelength is also in terms of centimeter. Your circuit size is in centimeter, and now wavelength is also in terms of centimeter. So now you cannot say that circuit size is very, very small as compared. What will happen? You will say, or you will observe that now circuit size is comparable to the wavelength. So what happens if you have a situation like this? And this is what happens in microwave engineering. In microwave engineering, because source frequency is very high, so wavelength is small, and your circuit size becomes comparable to the wavelength. When that happens, then you cannot assume that at each and every point of your circuit there is same current. So now you cannot use like this. What will happen at this point? So at this point of your circuit, there will be a different current. At this point, there will be something different current. At this point, current will be changing. So at each and every point, current will be changing. So now you cannot say that same current is passing. If same current is not passing, so of course, then voltage will also change. So it means when you have a situation like this, of course, this will happen when the frequency is very high. So what will happen? What you will say that uh, circuit theory is not applicable. Circuit theory is not valid. So then what you will use? How to solve a problem if you cannot apply circuit theory to that? The simple solution, or you can say the conventional method, is rather than using circuit theory, you will use field theory. And whenever you talk about field theory, so it means you are going to use Maxwell's equations that we have already discussed. Now the problem is KCL and KVL. Whenever someone asks you to use KCL and KVL, so you are quite comfortable with it. Why you are comfortable with it? Because KCL and KVL only involves addition and subtraction.
sum of voltage rises and voltage drops must be equal to 0, KVL, and current entering the node and current leaving the node, they must be equal. This is simply KCL. So there is no problem. There is no, you can say, difficulty involved in applying KCL and KVL. But if you are asked to apply Maxwell equations, so now it's a bit difficult. Why it's difficult? Because the two forms of Maxwell equation that we have discussed is that Maxwell equations can be represented in point form. In point form, you have derivative operation involved. The other form of Maxwell equation is integral form. In integral form, integration is involved. So from addition and subtraction in circuit theory, you have to use integration and derivation. So integration and derivation is difficult as compared to KCL and KVL. So what we can do is, we as a microwave engineer try to simplify, try to make our life easier. So our goal as microwave engineer is that we want to convert a problem of field theory into a circuit theory problem. We want to convert a problem of field theory into a problem of circuit theory so that we can apply KCL and KVL. So how we can do that? We can do that by making use of what is known as transmission line theory. Transmission line theory. So with the help of transmission line theory, we will transform our field theory problem into circuit theory problem. Okay, so let's go through it. So what we will do is we will draw an equivalent circuit. So let's continue. So let's assume this is a transmission line, or you can call it a circuit. Now this is the overall length of this circuit or transmission line. So there is current and voltage. Now this length of circuit is either equal to or greater than lambda. So it means the circuit size is not small with respect to wavelength. As a result, at each and every point, the current and voltages will be changing. So we cannot apply circuit theory to this problem. What we can do is we can divide this into small pieces. Let's say, let me take this one. Let's assume that I have taken a small piece out of this long transmission line. Of course, we will be dividing this. So of course, it means what I'm saying is you divide this whole transmission line into a number of small pieces. You divide this into a number of small pieces. And let's assume that this is delta Z. So now let's focus on this. I'm just trying to model this piece. So once I know the behavior of this small piece, then it means the rest of the pieces can also be represented by this. So now what I'm saying is we have now this small piece with the length of delta Z. So yes, minus plus V Z T. This is I Z T. On the other side, we will have current that can be represented as IZ plus delta ZT, and the voltage on the second end will be VZ plus delta ZT. Now, the condition is that this delta Z is now going to be small as compared to wavelength, because we have taken a very small piece. So now this
delta Z is not is small as compared to wavelength. So our circuit size is small. So if you go back, when circuit size is small with respect to wavelength, you can make use of circuit theory. So we are going to draw an equivalent circuit for this small piece. Okay. Now, what will be different components that are part of this transmission line? So transmission lines are made up of conductors. So this the line that I have drawn. So this is a conductor. These are two conductors, and in between these two conductors we have some kind of a dielectric, because the two conductors of a transmission line, they are not connected together. They are insulated from one another, and the insulating material is of course dielectric. So over here, what is the material? The material is dielectric. So what are the two materials of a transmission line? These two are conductors, and in between we have a dielectric. Okay. Now, conductor will have losses because its conductivity is finite, and it means there will be resistance as current travels through it. There will be some opposition to the current flow. So it means there will be some resistance of this wire as current is traveling and changing. So there will be inductance as well. Whenever there is a current, there will be inductance. So there will be inductor as well. As well as ideally, insulator should not allow any current to flow from this conductor to this conductor, ideally. But we know that dielectric materials are not lossless. They are lossy. And losses are, if you remember, losses of dielectric material are related to the conductivity. So why some current will travel from this conductor to this conductor? Because there will be losses within the dielectric. So that losses can be represented in terms of conductance. And you can look at this and you can see that this circuit, this figure is some kind of a capacitor, because there will be charges on this conductor, there will be charges on this conductor, and in between there is a insulator. So it is also kind of a capacitor as well. So in equivalent circuit, we will have these four components. We will have resistance, we will have inductance, we will have conductance, and we will have capacitor. But what is important is we need to define these parameters for unit length. In other words, how much will be resistance if I take a unit length? So all of these parameters are defined for per unit length. So what will be the unit of this? It will be ohms per meter. What is L? It will be Henry per meter. What is G? G is the conductance, and conductance is usually represented in measured in Siemens. So it will be Siemens per meter, and capacitance is measured in farads. So farad per meter. These are all per unit length parameters. So once we have this, I can draw a circuit, equivalent circuit. So there will be resistance, there will be inductance, there will be conductance, and there will be capacitance. So that small piece of transmission line having length delta Z, this is the what we call as lumped equivalent circuit. Lumped equivalent circuit. So now, once we have a circuit representation in terms of basic elements, so now you can make use of KCL and KVL. So we have transformed our circuit such that we can now apply KCL and KVL. Okay. But as I was talking about, these are per unit length parameters. The length that I have taken is delta Z. So if in per unit length there is R resistance, so how much resistance will be in a unit in a length of delta Z? So I need to just multiply R
with delta z, because ट्रांसमिशन लाइन लेंथ को मैंने कितना लिया हुआ है, डेल्टा जेड लिया, ठीक है। इंडक्टेंस कितनी हो जाएगी, एल टाइम डेल्टा जेड हो जाएगी। कंडक्टेंस कितनी हो जाएगी, जी टाइम डेल्टा जेड हो जाएगी। और कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, सी टाइम डेल्टा जेड। सो द आइडिया इज वंस यू नो पर यूनिट लेंथ पैरामीटर्स, और आपको कोई भी लेंथ फिर गिवन हो कि इस ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ इतनी है, ऑल यू नीड टू डू इज इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, और आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर 10 सेंटीमीटर ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ है और रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है 1 ओम पर मीटर है, तो 10 सेंटीमीटर में कितनी हो जाएगी, उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, 10 ओम। ठीक। सो नाउ ऑल यू नीड टू डू इज apply KCL and KVL to this equivalent circuit. So it is simple manner कि आप KCL KVL कैसे लगाएंगे, आपके पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी, ठीक है। तो I'm not going to detail of that. All you need to do is कि ये जो KCL और KVL जब आप अप्लाई करेंगे, उसमें आपने फिर लिमिट अप्लाई करनी है कि अगर इस ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ आप बिल्कुल स्मॉल कर दें, सो दैट डेल्टा जेड इज ऑलमोस्ट अप्रोचिंग, so you will end up with two equations. Okay, you will end up with two equations. एक आपके पास ये इक्वेशन आएगी फ्रॉम KCL, सॉरी KVL, और एक इक्वेशन आपके पास KCL से आएगी। तो ये आपके पास KVL से आ जाएगी, और ये इक्वेशन आपके पास KCL। So these are two equations जिनको हम कहते हैं टाइम डोमेन, टाइम डोमेन ट्रांसमिशन लाइन इक्वेशंस, or sometimes they are also known as telegrapher equations. So important structure to look at के लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं कि आप वोल्टेज का डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, और इस इक्वेशन में करंट आई भी है और उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले रहे हैं। जबकि जो सेकंड इक्वेशन है उसमें आप करंट का डेरिवेटिव स्पेस के हिसाब से ले रहे हैं और वोल्टेज का डेरिवेटिव टाइम के हिसाब से ले रहे हैं, ठीक है। नाउ the elder form that we will use throughout this discussion now is ये जो आपको representation नजर आ रही है, इसमें हम assume कर रहे हैं कि let's say फर्स्ट इक्वेशन में देखें कि करंट जो है वो वेरी कर रहा है टाइम के साथ, और इसमें वोल्टेज वेरी कर रहा है टाइम के साथ। नाउ इरिस्पेक्टिव कि ये करंट या वोल्टेज किस तरह वेरी कर रहा है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारे केस में हम अज्यूम करते हैं कि जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में जो वेरिएशन होती है वो साइनोसाइडल होती है, ठीक है। सो फॉर साइनोसाइडल टाइम वेरिएशन वी नो के वेरिएशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, e to power j omega t, जिस तरह हमने मैक्सवेल इक्वेशन में भी किया था। और वहां पे हमने ऑब्जर्व किया था कि जब आपके पास साइनोसाइडल वेरिएशन होती है तो फिर हम क्या करते हैं कि जो टाइम डोमेन क्वांटिटीज हैं, लेट्स से आई जेड टी, इसको हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इनटू इट्स फेजर रिप्रेजेंटेशन, जिसको फिर हम कैपिटल से शो करते हैं। और इसी तरीके से जो टाइम डोमेन वोल्टेज है उसको भी हम कन्वर्ट कर देते हैं इनटू फेजर रिप्रेजेंटेशन। तो ये आपके पास आ गए फेजर्स, so these are phases.
सो और दूसरा हम क्या करेंगे कि जहाँ पे भी आपको डी बाई टी, तो एक तो हम ये काम करेंगे और दूसरा जहाँ पे भी डी बाई डी टी होता है उसको हम किससे रिप्लेस करते हैं, जे ओमेगा से रिप्लेस। सो इफ आई डू दिस, तो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन जो है वो क्या जाएगी आपके पास, तो मेरे पास अब फेजर ट्रांसमिशन लाइन इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, फेजर ट्रांसमिशन लाइन इक्वेशन। सो लेफ्ट पे आपके पास आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज फेजर। लेट मी गो बैक, इसको हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, वी जेड टी को हमने वी जेड से रिप्लेस कर दिया। सो नाउ आवर फंक्शन और वेरिएबल इज ओनली डिपेंडेंट ऑन जेड, सो पार्शियल के बजाय डी जेड आ गया। राइट साइड पे आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस आर प्लस जे ओमेगा एल इंटू आई जेड। सो यहाँ पे आपके पास आई जेड आ गया, यहाँ पे डी बाई डी टी की जगह जे ओमेगा आ गया और इसकी जगह आई जेड आ गया। सो यू गेट दिस। और सेकेंड इक्वेशन से क्या जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ करंट फेजर माइनस जी प्लस जे ओमेगा सी इंटू वी। सो इसकी जगह वी जेड मैंने लिख दिया, इसकी जगह जे ओमेगा लिख दिया और इसकी जगह मैंने वी जेड लिख दिया और फिर वी जेड को मैंने कॉमन ले लिया तो ये। So now these are phasor forms of transmission line equations, and these equations we will be using throughout our discussion. Now, all you need to do is to put things in perspective. चैप्टर 1 में हमने फील्ड्स की हम बात कर रहे थे, क्योंकि हम मैक्सवेल इक्वेशंस यूज कर रहे थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में हम सबने डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। अब क्योंकि हम सर्किट थ्योरी अप्लाई कर रहे हैं, तो सर्किट थ्योरी में हम फील्ड्स के बजाय वोल्टेज और करंट यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो फील्ड थ्योरी में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और सर्किट थ्योरी में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह वोल्टेज आ गया और करंट, मैग्नेटिक फील्ड की जगह करंट आ गया, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी द कंपैरिजन। अब जो भी हम आगे इस दो इक्वेशंस को आगे यूज करेंगे, वो इस कंटेक्स्ट में यूज करेंगे कि ये जो इक्वेशंस हैं इनका जो बिहेवियर है वो फील्ड का जो बिहेवियर है उसके इक्वल है, उसकी उसी की तरह है, ठीक है। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, अगर आप इस इक्वेशन को देखें, जो कि आप कह सकते हैं कि सर्किट थ्योरी की इक्वेशन है, क्योंकि इसमें आपको वोल्टेज नजर आ रहा है, करंट नजर आ रहा है, ठीक है। इसको अगर आप कंपेयर करें फील्ड थ्योरी में, जो मैक्सवेल इक्वेशन, ऑफ कोर्स फील्ड थ्योरी मींस मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन में अगर आप देखें, हमने एक इक्वेशन, चार इक्वेशंस पढ़ी थी, ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट, क्योंकि इसमें ऑलरेडी वो आपको नजर आ रहा है कि वेरिएशन इन्वॉल्व है, तो विद रिस्पेक्ट टू वेरिएशन के हिसाब से मैक्सवेल में दो इक्वेशंस हैं, एक फेराडेज लॉ है और एक एम्पियर्स लॉ है, जिसमें टाइम वेरिएशन इन्वॉल्व, ठीक है। तो फेराडेज लॉ इस तरह है, फेराडेज लॉ, या जिसको आप, ऑफ कोर्स आई एम कॉलिंग इट फेराडेज लॉ, बट यू नो कि ये मैक्सवेल इक्वेशन, it was like this, minus j omega mu h, और ऑफ कोर्स अगर मैं कंप्लीट करूं तो उसमें ये ठीक है। आई वांट, ओके, मैं अटेंडेंस लिंक जो है नेक्स्ट सेशन में आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। ओके, सो इस इक्वेशन को आप कंपेयर करें इसके साथ, ये जो लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा है, मैक्सवेल इक्वेशन में कर्ल ऑफ ई इन्वॉल्व है, कर्ल ऑफ ई, लेकिन यू नो कर्ल ऑफ
ऑपरेशन आपको पता है, इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो इसमें क्या इन्वॉल्व होगा, उसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व होंगे। ई का आपने डेरिवेटिव लेना होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई और विद रिस्पेक्ट टू जेड। और उसका रीजन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक 3 डायमेंशनल क्वांटिटी है। ये अलोंग एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है, जेड एक्सिस भी है। तो उस वजह से आपके पास जो डेरिवेटिव, जब इसको आप एक्सपेंड करते हैं, अगेन अगर आपको कहा जाए कि ये किसके बराबर है, तो यू कैन नो कि इसको आप जब एक्सपेंड करते हैं तो इसमें डी बाई डी एक्स टर्म भी होती है, डी वाई होती है और डी बाई डी जेड भी होती है। जबकि सर्किट थ्योरी में अगर आप देखें मेरे पास सिर्फ डी जेड है। उसका रीजन ये है कि वोल्टेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ जेड का फंक्शन। तो देयर इज नो डी बाई डी एक्स, देयर इज नो डी बाई डी वाई, ये दोनों टर्म्स नहीं। अदरवाइज इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है एग्जैक्टली यही चीज। कर्ल ऑफ ई मींस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, और इस इक्वेशन में भी आपको डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू स्पेस नजर आ रहा है। दूसरा अगर आप देखें इसमें रेट ऑफ चेंज इन्वॉल्व है। अगर आप देखें ये जे ओमेगा कहाँ से आया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे अगर आप देखें जे ओमेगा मीन रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है, करंट। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज प्रोड्यूसिंग वेरिएशन ऑफ वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। और इस इक्वेशन को आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं, यू से रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। सो दीज टू इक्वेशंस आर वेरी मच सिमिलर। और दूसरी जो इक्वेशन है इसको अगर आप कंपेयर करें, मैक्सवेल की दूसरी इक्वेशन जो हमने चैप्टर 1 में यूज की थी वो ये थी। ये यहाँ पे कर्ल ऑफ एच है, जो कि अगर इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ एच है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस है। और इसमें क्या चीज है, डेरिवेटिव ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। और राइट साइड पे क्या है, जे ओमेगा ई है। जे ओमेगा का मतलब क्या है, डी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज। So rate of change of electric field produces variation of magnetic field with respect to space. और यहाँ पे क्या है, rate of change of voltage is producing variation of current with respect to space. So these two equations can be easily compared. तो ये आपके पास जो दो equations हमने derive की हैं, इनको आप easily compare कर सकते हैं field theory के साथ, ठीक है। और फिर हमने क्या किया था, हमने कहा था कि ये जो दो इक्वेशंस हैं इसमें दो अननोन्स हैं, ई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमारे अननोन्स। और अब हमारे पास जो ट्रांसमिशन लाइन इक्वेशन में प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास वोल्टेज और करंट्स जो हैं ये अननोन। तो हमने क्या किया था पिछले चैप्टर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए हमने इन दो इक्वेशंस को यूज करके एक ऐसी इक्वेशन बनाई थी जिसमें या तो ई था या जिसमें या तो एच था। और इसको फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वेव इक्वेशन का नाम दिया था, इसको मैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन का नाम। तो इन अ सिमिलर मैनर व्हाट वी कैन डू, वी कैन सी के इस दोनों इक्वेशन में वोल्टेज भी है और करंट भी है। इस इक्वेशन में वोल्टेज भी है, करंट भी है, इसमें करंट भी है, वोल्टेज भी है। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम मॉडिफाई कर देंगे एक ऐसी इक्वेशन में कि जिसमें या वोल्टेज हो या फिर करंट, ठीक है। और इन कंपैरिजन की वजह से सर्किट थ्योरी में आप वोल्टेज और करंट टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, बट नाउ बिकॉज वी नो कि ये जो बिहेवियर आपको नजर आ रहा है ये वेव सॉर्ट ऑफ बिहेवियर है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज है इसको हम वोल्टेज वेव कहते हैं, ठीक है। और करंट को हम सिंपल करंट नहीं कहेंगे बल्कि हम कहेंगे कि करंट वेव। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि ये जो दो इक्वेशन है इनको हम यूज करके आप एक सिंगल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। जिस तरह हमने वेव इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेव इक्वेशन और वेव इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिराइव करने के बाद उसका सोल्यूशन फाइंड किया था, और सोल्यूशन के बेस पे हमने फिर कुछ कंक्लूजन ड्रॉ की थी कि इसका सोल्यूशन हमें क्या बता रहा है। सो इन अ सिमिलर मैनर इन दोनों इक्वेशंस को भी हम सॉल्व करेंगे ताकि हम वोल्टेज वेव और करंट वेव के बारे में कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें। सो व्हाट आई एम लुकिंग इज कि मैं इस इक्वेशन, इन दो इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कर दूं इनटू वन इक्वेशन which involve only one unknown quantity, ठीक है। उसका सिंपल तरीका वही है जो हमने पहले भी किया था। उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें हम कर्ल ऑपरेशन, हम कह रहे थे कि इस इक्वेशन का कर्ल ले लें दोबारा से। इस केस में हम क्या करेंगे, क्योंकि डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो हम कहेंगे कि अगर मैं इक्वेशन 1 का डेरिवेटिव ले लूं, तो टेक डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन 1
विद रिस्पेक्ट टू z। सो मेरे पास आ जाएगा सेकंड डेरिवेटिव बन जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा नाउ व्हाट यू कैन डू इज, ये जो आपके पास आ गया इसकी जगह आप क्या यूज कर सकते हैं, इक्वेशन 2 यूज कर सकते हैं, बिकॉज वी नो के डी आई डी जेड जो है इसके बराबर। सो यहाँ पे आप इसको रिप्लेस करें, ठीक है। सो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये आ गया। सो व्हाट वी गेट इज वी हैव नाउ एन इक्वेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज आपको नजर आ रहा है। मैं लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लेता हूँ तो माइनस हो जाएगा। सो वी हैव माइनस आर प्लस जी ओमेगा इंटू जी प्लस जी ओमेगा सी वी ऑफ जेड इक्वल टू जीरो। नाउ ये जो आपको नजर आ रहा है दिस कांस्टेंट, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ये जो आपको नजर आ रहा है ये बेसिकली आपके पास है प्रोपगेशन कांस्टेंट, जिसको हमने गामा से रिप्रेजेंट किया। तो ट्रांसमिशन लाइन की केस में जो प्रोपगेशन कांस्टेंट है वो इसके तरफ। तो ये जो फैक्टर है इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, माइनस गामा स्क्वायर, एंड वी हैव दिस इक्वेशन जिसको हम कहेंगे वोल्टेज वेव इक्वेशन। इसको आप कंपेयर कर लें जो हमने पिछले टॉपिक के साथ पिछले चैप्टर में देखा था, फील्ड जब कह रहे थे, उसमें हमारे पास ये इक्वेशन। सो मेक श्योर दैट यू कीप दिस कंपैरिजन, ठीक है। फील्ड थ्योरी में ये आपके पास इक्वेशन थी, और अब सर्किट थ्योरी जिसमें ऑफ कोर्स ट्रांसमिशन लाइन थ्योरी के बाद हमारे पास इक्वेशन है वो ये। तो यू कैन सी द कंपैरिजन। यहाँ पे आपके पास डेल स्क्वायर है, ऑफ कोर्स डेल स्क्वायर को जब आप एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएंगे। इसमें भी आपके पास सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू जेड है, और रीजन क्या है कि ये वोल्टेज फंक्शन ऑफ जेड होंगे, जबकि इसमें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये फंक्शन ऑफ एक्स भी होता है, फंक्शन ऑफ वाई भी होता है, फंक्शन ऑफ जेड। इस वजह से जब आप इसको एक्सपेंड करते हैं आपके पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई और विद रिस्पेक्ट टू जेड तीनों डेरिवेटिव, ठीक है। यहाँ पे भी ये जो फैक्टर था वो प्रोपगेशन कांस्टेंट था, वो आपके पास वायरलेस मीडिया का प्रोपगेशन कांस्टेंट है, जबकि ये जो प्रोपगेशन कांस्टेंट है ये ट्रांसमिशन लाइन का। देखो अब जिस तरह हमने इसका सोल्यूशन फाइंड किया था, अब हम इसका सोल्यूशन भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह का होगा। इसका अगर हम सोल्यूशन लिखें तो द सोल्यूशन फॉर वी जेड विल बी इक्वल टू वी प्लस, लेट मी यूज द सेम सिंबल जो कि बुक में है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, बट अगेन द आइडिया इज सिमिलर कि ये जो जो कांस्टेंट है ये यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं ये कांस्टेंट ही होता है, लेकिन बुक में इसको वी नॉट से रिप्रेजेंट किया गया। सो लेट मी यूज द सेम सिंबल। So V naught plus is a constant, and then e power minus gamma z plus V naught minus and e plus. And this solution has the same meaning जो कि पिछले केस में था। ये जो solution part है और ये जो solution part है ये क्या indicate कर रहा है, ये एक traveling wave को show कर रहा है। traveling wave, ये भी एक traveling wave। ये आपके पास पॉजिटिव z डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है, और ये जो है माइनस z।
जिस तरह हमने इसका सोल्यूशन फाइंड किया था, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको याद रहे, हमने इसको जब सोल्यूशन फाइंड किया था वो ये था, e प्लस ई पावर माइनस गैमा जेड था और e माइनस ई प्लस गैमा जेड. So this was a positive traveling wave and this was a positive negative traveling wave. Similar concept. Now जिस तरह हमने ये कहा था कि इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके आप एक ऐसी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं जिसमें वोल्टेज हो, जिस तरह मैंने किया है. इस तरीके से अगर आप एक ऐसी इक्वेशन डिराइव करना चाहते हैं जिसमें करंट हो तो वो भी आप कर सकते हैं. उसमें क्या करना पड़ेगा, ऑल यू नीड टू डू इज कि आपको इस इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा. इसका आप डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड दोनों साइड पे, तो यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव ऑफ करंट आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ जेड आ जाएगा. और इसकी जगह फिर आप क्या यूज कर देंगे, इसकी जगह फिर आप इक्वेशन 1 यूज कर देंगे. तो सिमिलर आपके पास आ जाए. तो मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ. Similarly, we can derive an equation involving Iz. That is, इस तरह की इक्वेशन आपके पास है. ये आपके पास, और इस इक्वेशन को फिर आप क्या कहते हैं, करंट वेव इक्वेशन. नाउ वन पॉसिबिलिटी इज कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसका सोल्यूशन किस तरह का होगा. आप लिखेंगे कांस्टेंट आई नॉट प्लस ई पावर माइनस गैमा जेड प्लस आई नॉट माइनस ई प्लस गैमा. But we will not be representing the solution of current like this. The reason is ये जो दो equations हमने derive की, these two equations are clearly telling us that voltage and current, they are not independent of one another. They are related to one another. Which means that once we know the solution of any of the quantity, let's say आपने voltage का solution find कर लिया है, तो आप इस equation को use करके इसका आप डेरिवेटिव ले लेंगे और आपके पास करंट का सोल्यूशन. तो वी विल बी मोस्टली यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट कि हम वोल्टेज का सोल्यूशन फाइंड करने के बाद इस इक्वेशन की मदद से आई ऑफ जेड फाइंड. ये आइडिया बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर है जब हम मैक्सवेल इक्वेशन की बात कर रहे थे. हम क्या कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड का सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं ई का, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए फिर आपको कोई अलग से इक्वेशन यूज करने की जरूरत ही नहीं है. आप इसी इक्वेशन की मदद से इसको एच को फाइंड कर सकते हैं. ऑल यू नीड टू डू, यहाँ पे ई को सोल्यूशन इंसर्ट कर लेते हैं, उसका कर्ल ऑपरेशन अप्लाई कर लेते हैं, इस फैक्टर पे डिवाइड कर लेते हैं और आपके पास एच आ जाता है. तो अब यही एग्जैक्टली हम करने वाले हैं कि वोल्टेज का सोल्यूशन जब आ गया आपको, जो कि यहाँ पे हमारे पास है, ये हमारे पास सोल्यूशन है इसका, दिस इज द सोल्यूशन. इस सोल्यूशन को अगर हम यहाँ पे इंसर्ट कर दें, कहाँ पे, इस जगह, और इसका डेरिवेटिव ले लें और फिर इस फैक्टर पे इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आई जाएगा. तो ये इस कंसेप्ट की को यूज करने के बाद आपके पास करंट का सोल्यूशन क्या आ जाएगा. You will get this solution. Let's continue this discussion in the next session.